Is this visible? Okay, great. In the last lecture, we were talking about push-down automata, and we had solved one problem of A and Bn. I think Tanya or Anshika, one of them had a doubt. So, is it clear, or should I discuss it right now? One of you had a doubt. मैम तानिया का था शायद. Okay, Tanya is here. Tanya, are you here? Okay, I get. Okay, so I think everyone heard that doubt. Do you have any questions, or should I move ahead? Okay, I'm moving ahead. So, can anyone help me understand how push-down automata is different from a finite automata? How is a push-down automata different from a finite automata? Krishna, can you help me understand? Krishna? Yes, ma'am. What is how are finite automata and push-down automata different? मैम रेगुलर लैंग्वेजेस फाइनाइट ऑटोमेटा रिकॉग्नाइज करता है और Okay. और मैम कंटेक्स्ट फ्री लैंग्वेजेस जो है वो पुश डाउन ऑटोमेटा के रिकॉग्नाइज कर पाता है. पुश-डाउन ऑटोमेटा रेगुलर लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता. मैम कर पाता है. रेगुलर लैंग्वेजेस जो है फाइनाइट ऑटोमेटा अच्छा पुश डाउन ऑटोमेटा. Finite automata accepts regular languages, fine. आपने बोला PDA accepts CFLs, fine. But my question is that does PDA accept regular languages also or not? Yes or no? बेटा थोड़ा सा लाउडली बोलना पड़ेगा. नो बोल रहे हो आप? मैम कर पाता होगा. याद नहीं आ रहा. कर पाता होगा या कर पाता है? Not sure? You are not sure? नो मैम. Okay, no problem. Chirag? Chirag? Himanshu Sharma? Prakhyat? Oh, hello. Yes, ma'am. Yes. So the question is that does PDA accept regular languages or not? Ma'am, it does not. It does not. No, wait, it's in. हाँ करता है मैम. पीडीए कर सकता है. Okay. So finite automata accepts only regular languages and PDA accepts both regular languages and some non-regular languages which are context free. तो Yes, ma'am. कृष्णा ये बात ध्यान रखना
कि अगर मैं पूछ रही हूँ कि क्या एक्सेप्ट करते हैं, सो फर्स्टली जो आपका रेगुलर लैंग्वेजेस हैं, they can be accepted both by FA as well as your PDA. Okay, Yes, ma'am. PDA is a stronger version. Then there are some languages which are CFLs. CFLs की अगर मैं बात करूं तो CFLs में दो टाइप के लैंग्वेजेस हैं. रेगुलर भी है and some non-regular. Not all, some. You will see now that there are certain languages which even the PDA cannot accept. So when we say CFLs, so CFLs include your regular. So every regular language is a CFL also, but every CFL may not be regular because of this thing. जो आप Venn diagram बनाते हो ना, so if you have a set of regular language in this, and you have a set of CFLs in this. So this CFLs contains both regular languages as well as some non-regular languages. Having said that, कुछ और non-regular languages इस set के बाहर भी होती हैं, यहाँ पे भी होती हैं. So, but they are not CFL. So this was Chomsky hierarchy that we talked about. कि सबसे पहले regular languages का set था, फिर कुछ CFLs थे. CFLs is basically some non-regular languages, and obviously this is also a subset. And then there are other non-regular languages which are not CFL also. But we are now focusing on this, that regular languages can be accepted both by FA as well as PDA, and CFLs can be accepted by PDA. If that CFL is regular, it can be accepted by FA also. But my question still remains that what is the difference between FA and PDA? There is something that we added which could give more power to a push-down automata. What was that? मेमोरी होती है उसके पास. Okay, and वो memory क्या होती है? मैम स्टैक. Okay. Right. So when I added the stack memory, right? When I added the stack memory to and to my FA, I said that this power gave me a more powerful machine, which was a PDA. Okay, so we have talked about this. We are assuming that input tape is available for both your finite automata as well as push down automata. We have also talked about this, that input tape is divided in cells, and these cells initially contain blank symbols, delta. Okay, and suppose there is an input that comes, so these blank symbols get overwritten on the cells. So it will be something like this: A, B, A, something of this sort on each of the cells. So wherever you are writing, it will obviously be typically the जहाँ पे head होगा, यहाँ head होगा तो वहाँ पे first letter of input string आएगा, and बाकी के still delta होंगे. तो as soon as I get a delta or a blank symbol, I know that my string is over. ठीक है. अब इसके अलावा PDA में क्या था? एक तो था sigma, which was input tape पे जो symbols आ सकते थे, sigma. फिर एक था अल्फाबेट गामा. ये गामा वो था जो स्टैक के सिंबल्स थे. अब कई बार सिग्मा और गामा में सेम सेट ऑफ सिंबल्स होते हैं, मतलब यहाँ पे भी ए बी होगा और यहाँ पे भी ए बी होगा. यहाँ पे इसका ब्लैंक हो सकता है. वैसे ब्लैंक को हम सिग्मा का पार्ट नहीं मानते, वो इनपुट टेप पे स्पेशल होता है, बट यहाँ पे हम ब्लैंक रख सकते हैं. So in this case, you have similar symbols. Suppose you want to push A, so you can push an A over here because it belongs to your set of
symbols in gamma alphabet, which is the stack alphabet. But it is also possible कि सिग्मा में A और B की जगह X और Y हो, कुछ रैंडम X और Y हो. तो हो सकता है कि यहाँ पे A आए, इनपुट टेप पे A आए, और आप यहाँ पे जैसे ही A रीड करो तो आप X पुश कर दो. X क्यों पुश कर सकते हो? क्योंकि गामा का पार्ट X और Y है. अब अगर यहाँ पे A और B नहीं है, आप अगर नोटिस करो, if this A और B is not there, then you cannot push it onto the stack, क्योंकि stack का अल्फाबेट ये है, तो यही चीज आप पुश कर सकते हो. इसमें ये क्लियर है? So what I am trying to say is that sigma and gamma can have exactly the same letters, and they may have different letters, or they may have similar sets. Like gamma ऐसा भी कुछ हो सकता था, A, B and X, ये भी possibility है. ये कुछ symbols इसके sigma के ले लिए और कुछ नए symbols add कर दिए, तो gamma ये भी हो सकता था. So do you have endless possibilities? Is this clear? इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं. ओके, तो इंग्लिश और हिंदी की बात करते हैं. मान लो ये इंग्लिश लैंग्वेज है, ठीक है. तो अश्विन, इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज के अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं? 26 होते हैं, राइट? सो 26 होते हैं. तो यहाँ पे वो कौन से लेटर्स होते हैं? एबा, कटा, एफा, गहा, ईजा, कला, व्हाटएवर. सो यू हैव 26 लेटर्स इन अल्फाबेट इन इंग्लिश. अगर मैं ये बोल दूं कि मेरा जो गामा है वो हिंदी की वर्णमाला है, तो इट बिकम्स क, ख, ग, घ. तो बस यही फर्क है. बस ये बोल रहे हैं कि ये दूसरा सेट है, ये दूसरा सेट है. अब मैं अगर बोलूं कि सिग्मा और गामा दोनों इंग्लिश लैंग्वेज का सेट है, अल्फाबेट का सेट है, तो देन दे विल बी सेम. अदरवाइज मैं ये भी बोल सकती हूँ कि एक फ्रेंच और एक इंग्लिश है, ऐसा हो सकता है. So how we are going to use it, that we will talk about later. But what I am trying to say over here is कि गामा में जो भी सेट है वो ही हम पुश या पॉप करा सकते हैं. ऐसा नहीं होगा कि गामा में एक्स वाई है तो हम A, B पुश करा दें या पॉप करा दें. Okay. So for example, when I write my name, it starts with V. But अगर मैं स्टैक में पुश करी और स्टैक मेरा ये वाला है, क, ख, ग, घ वाला है, तो मैं ये पुश करूंगी. So this is just an analogy. Obviously, आप कुछ भी push कर सकते थे stack में, but I am simply saying that this was on your input tape and this goes inside your stack. Clear? Great. So let's move ahead. So that's what we were talking about. We do not restrict stack alphabet to be same as sigma. So we could have read an A of sigma and pushed onto stack some X. PDAs can be non-deterministic. Finite automata non-deterministic होते हैं? Is FA non-deterministic? Yes, ma'am, होते हैं. Okay, great. Thank you so much. So DFA, FA दो टाइप के होते हैं जो हमने पढ़े थे, DFA and NFA. Okay. अब मैं DFA और NFA की बात करूं तो क्या NFA में कोई स्पेशल पावर है? मतलब अपार्ट फ्रॉम नॉन डिटर्मिनिज्म कि मैं कुछ ऐसी एंट्री कर सकती थी, दिस वाज आल्सो A and this was also A. So this was non-deterministic. But DFA में ये नहीं होता था. DFA में कुछ ऐसा करना पड़ता था फिर इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए. That A, I'm sorry, this looks like a kidney name, but anyways. So अगर DFA में आपको A star accept कराना था तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ता था. You could not have this representation in NFA, so equivalent was this. But having said that, apart from representation, apart from outgoing edges, ऐसा कोई स्पेशल लैंग्वेजेस थी जो NFA एक्सेप्ट कर पाता था और DFA नहीं कर पाता था? कैन यू थिंक ऑफ एनी ऑफ दोज लैंग्वेजेस? क्योंकि आई एम श्योर आपने एटलीस्ट 2-3 एग्जांपल हमने
एग्जांपल्स करें क्लास में और कुछ आपने सॉल्व भी किए. So I am asking you simply that NFA can be converted to DFA. We know that. We also know that DFA can also be converted to NFA. But my question is कि ऐसी कोई लैंग्वेज है जो NFA रिप्रेजेंट कर सकता है और DFA नहीं कर सकता? Think about it. I'm giving you 30 seconds. Just think about it. Okay, Abhinav, can you help me with this answer? Chirag, can you help me with this answer? Bhumi, Ma'am, can I answer? yes, please. Puchu. Ma'am, there's no difference. There's no such language that a DFA can accept or NFA can't, or NFA can accept or DFA can't, because both have same powers. So they are all going Very to represent they are all going to represent regular expression. They are just way of DFA is just more explicit. We are also defining the dead set or every options. We are defining it, making more deterministic. But NFA, we are just more generalizing it. Very nice. Thank you so much, Lalit. Thank you. Very nice. So, ललित बोल रहा है और ललित सही बोल रहा है कि DFA और NFA में पावर में कोई डिफरेंस नहीं है. जो लैंग्वेजेस DFA रिप्रेजेंट कर सकता है, जो सेट ऑफ लैंग्वेजेस, वही सेट ऑफ लैंग्वेजेस एक NFA भी रिप्रेजेंट कर सकता है. ललित वो वाली पोस्ट ढूंढ के ना +1 लिख देना उस पे क्लासरूम पे, ठीक है? Okay then. Thank you. Okay. So जो लैंग्वेजेस DFA रिप्रेजेंट कर सकता है वो NFA भी कर सकता है. ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं है जो NFA रिप्रेजेंट कर पाए और DFA ना कर पाए. This is not possible. This is not right. So they both have same powers. We are only, as he said, the generalization करे. We are just making it easier for us to represent. Otherwise, DFA और NFA में कोई फर्क नहीं है. Apart from options या apart from this situation, there is no difference. But PDA में ऐसा नहीं है. As well as non-deterministic. So when I'm talking about PDA, PDA में लेकिन क्योंकि वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो दोनों की पावर सेम होगी. ऐसा नहीं होता. पीडीए के केस में जो डिटर्मिनिस्टिक पीडीए है वो कुछ सेट ऑफ लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करता है. नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए जो होता है वो सेट ऑफ लैंग्वेजेस L1 तो रिप्रेजेंट कर ही सकता है, एक्सेप्ट कर ही सकता है, प्लस कुछ एक्स्ट्रा सेट ऑफ लैंग्वेजेस भी एक्सेप्ट कर सकता है. सो और नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीए इज more powerful as compared to your deterministic PDA, and we will just show you how is it possible. We will discuss that. So but you have to remember that this non-determinism in PDA will help you accept more languages than a deterministic PDA. अब बात करते हैं. Okay, this I have already written. So NFAs are not more powerful, but non-deterministic PDAs are more powerful. Okay, deterministic PDA को अगर मैं define करना चाहूँ तो हर input string का unique path है through the PDA. मतलब ऐसा नहीं होगा कि मेरे पास यहाँ पे एक exit edge है और एक और exit edge है और मान लो इसके बाद some B is coming and I reach an accept state and यहाँ पे something is coming and I reach. तो अगर मेरे पास A B आया मान लो, so I have this path as well as this path.
बट डिटर्मिनिस्टिक पीडीएफ में ऐसा नहीं होगा, एक ही पॉसिबल पाथ हो सकता है। अगर कोई इनपुट स्ट्रिंग आ रहा है इनपुट टेप पे, तो डिटर्मिनिस्टिक पीडीएफ बिकॉज एग्जैक्टली वन एज उस सिंबल की एग्जिट कर सकते हैं स्टेट से, इसलिए यूनिक पाथ होगा इनपुट स्ट्रिंग का डिटर्मिनिस्टिक पीडीएफ में। नॉन डिटर्मिनिस्टिक पीडीएफ में आपके पास अगर मान लो 4 सिंबल हैं, तो अब उसमें से एग्जिट एजेस हो सकता है उन चारों के लिए निकल जाए और हो सकता है सिर्फ एक के लिए निकले। सो यू कैन हैव टू फ्यू एज वेल एज टू मेनी, मतलब सिर्फ ए रिप्रेजेंट करो, बाकी ना करो, और 2 बार ए रिप्रेजेंट करो, ये सारी पॉसिबिलिटीज हम कवर कर लेते हैं। So you need not cover all the letters in the input symbol, and you can cover an input symbol multiple times in a non-deterministic PDA. DPDA में नहीं कर सकते थे. You have complete freedom whether you put an A edge or a B edge leading out of a particular read state. If you do not want to, keep this edge, you have complete freedom in non-deterministic PDA. Then there is you can have no edge leading out of a branch state. मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पे रीड में हूँ या पॉप में हूँ, तो प्रॉप आपके ये दोनों आपकी ब्रांचिंग स्टेट्स थी, इसमें से जो भी एग्जिट होता था आपके पास ऑप्शंस होते थे। बट अगर मैं इससे कुछ ब्रांच आउट ना करवाऊं, कुछ ना कोई एक्शन ना लूं, आई डोंट ट्रांजिशन, देन दिस इज इक्विवेलेंट टू डेड स्टेट और मैं reject state. So this is also possible, and I have this option in non-deterministic PDA, which was not possible in your deterministic PDA. Is this okay? So when I say languages accepted by FA, NFA or transition graph, that is my regular languages. This is also known as type 0. Then these are the subset of this set. मतलब ये वाला set ये वाली languages भी accept कर सकता है. Then there are certain languages which can be accepted by a deterministic PDA, and there are certain languages which can be accepted by non-deterministic PDA. This non-deterministic PDA will accept these languages also, but this deterministic PDA may will not necessarily accept languages in this set. इसी सेट की एक्सेप्ट कर सकता है और इस सेट की नहीं कर सकता, बट रिवर्स पॉसिबल है। मतलब NDPDA अपनी सेट की लैंग्वेजेस भी कर सकता है, इस सेट की भी कर सकता है, इस सेट की भी कर सकता है, पर ये ऑर्डर ट्रू नहीं रहेगा। ठीक है, अब ये आप बनाओगे पैलिंड्रोम X है कुछ इस टाइप का, ओके, इसका आप DPDA बनाओ, मेक अ DPDA, pen paper, anything, you can do that.
Done? Anyone? Vibhu, Tanya, प्रकृति, प्रतिका, चिराग, आज चिराग गायब है। चिराग, you are somewhere outside today? खाना खा रहा था मैं, ब्रेकफास्ट कर रहा था. Okay, I'll give you all 2 more minutes and then please start presenting on your screens what you have done. मैम इसका क्या कहते हैं, पुश वो बनाता था ना, जो था हमारा. Not able to understand आप क्या बोल रहे हो, थोड़ा सा loudly बोलोगे? मैम क्या बनाना था मैम इसमें इसका? ये आपको पीडीएफ बनाना है, पुश डाउन ऑटोमेटा से रिप्रेजेंट करनी है ये लैंग्वेज। मैम मैंने इनकी पुश डाउन तो बना दिया, पर इसमें वो क्या कहते हैं, बॉक्सेस का साइज मैंने सेम रखा है, उसे देख लेना एक बार. साइज मतलब शेप बोल रहे हो? शेप 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 नहीं, अच्छा अभी कर लो, बट वो वैसे एक्सेप्टेबल नहीं होता, हर चीज की अलग शेप है, फ्लो चार्ट टाइप लुक होती है इसकी, डिसीजन बॉक्सेस वगैरह टाइप्स बनाने पड़ते हैं। अभी आप दिखा दो आपने क्या। शिखा, you are next, okay? दयाशंकर, इसके बाद आपने दिखाना है पुश डाउन ऑटोमेटा आफ्टर अंशिका. Are you presenting your screen? Chirag, are you presenting your screen? यस मैम. स्टार्ट किया, पुश किया, जो भी आएगा, ओके. उसके बाद जैसे एक्स आया पॉप करना शुरू कर दिया. तो मैच कैसे होगा? पैलिंड्रोम है ना, तो अगर उल्टी साइड ए होता तो भैया आप आगे जाते ना, मतलब जो पॉप होता जाएगा वो मैं प्रिंट करता जाऊंगा. अगर ए बी नहीं, की आप कोई पॉप कर रहे हो तो मैच कहाँ कर रहे हो? मैचिंग तो नहीं कर रहे ना? आर यू मैचिंग? मैचिंग मतलब नहीं कर रहा. वो तो करनी पड़ेगी ना. पैलिंड्रोम में बढ़ेगा ना, क्योंकि पुश कर रहा हूँ तो वही रिवर्स ऑर्डर में तो मिलेगा. जरूरी नहीं है ना. अगर अच्छा ओके, लेट्स टॉक अबाउट अ वर्ड ए बी बी डी, ए ट्रिपल बी, ठीक है? अब इसको रन करके देखो, आपके पे चल जाएगा मैम. ट्रिपल ए क्या? ए ट्रिपल बी, ए ट्रिपल बी, ए ट्रिपल बी. ये आया पुश. एक्स भी तो आएगा भी, इसमें एक्स का डालना पड़ेगा. हाँ, ए बी एक्स डबल बी, ए एक्स. हाँ तो इसमें दिक्कत हो जाएगी. एक्स के बाद मैम नहीं आएगा ना मैम. पॉप तो वो हमारे स्टैक से ही करेगा, उसमें सिर्फ ए बी तो है, वो बी ए ही तो पुश पॉप करेगा. ओके, सी हियर यू हैव, ओके, is there something that you can see on my screen? मैं स्टॉप करूं शेयरिंग? मैं आपकी स्क्रीन पे मार्क कर रही थी, पर नहीं आ रहा ना, किसी को नहीं दिख रहा ना मार्कर? नो मैम, मेरे को अपनी ओके, नो प्रॉब्लम, आप स्टॉप कर दो. मैम प्लीज मैम एक बार और क्वेश्चन दिखा दीजिएगा मैम, थोड़ा नेटवर्क इशू चला था मैम, क्वेश्चन नहीं देख पाया था. ठीक है बेटे, मैं एक बार दिखाती हूँ. मैम तो फिर करेक्ट है नहीं, आप बता दो जरा.
ठीक है, दिस इज विजिबल. यस मैम. ओके, सो चिराग, आपका कुछ ऐसा था ना ऑप्शन, आपने यहाँ पे स्टार्ट किया यस मैम. and then you did what, a push, यस मैम. and when you did a push you could push everything. Oh sorry, we have to read also, right? यस मैम. So I read something. When I read, if I got an A or I got a B, I would want to push it, and so I pushed it until I kept pushing till I got an X. If I got an X, then you would start. पॉप रीड करके पॉप करना. So you will start popping it. Okay. Yes, So ओके, अब आप जब पॉप कर रहे हो तो अब आप क्या कर रहे हो, जितनी बार वो A, B रीड कर रहा है, मतलब आप उसको पॉप करते रहते हो, ऐसा कुछ कर रहे हो. यस मैम. और उसके बाद जैसे ही उसको ब्लैंक मिलता है वो एग्जिट कर जाएगा, एंड हो जाएगा. ओके, अच्छा नहीं, ये इधर नहीं जाएगा ना. सबसे पहले तो ये गलती है, पॉप बार बार करवाओगे तो रीड करना पड़ेगा तभी पॉप करवाओगे ना. सिर्फ पॉप कराते रहोगे तो रीड कैसे करोगे. नेक्स्ट सिंपल. एनीवेज चलो ठीक है, आपने क्या बनाया था वही वाली बात करते हैं. सो यू हैव पॉप्ड एंड यू हैव एक्सेप्टेड समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट. यस मैम. कुछ ये बनाया था, ठीक है. अब मैं बोल रही हूँ, आपका सिंबल आया A, B, X. सबसे पहले आपको देखने में क्या लग रहा है, ये पैलिंड्रोम है? नहीं. ओके, अब लेट्स स्टार्ट रीडिंग. तो स्टार्ट किया, इसमें आए A आया, तो स्टैक के अंदर A पुश कर दिया, ठीक है. फिर अगली बार फिर वापस गए, B आया, टैग के अंदर B पुश कर दिया, ठीक है. उसके बाद अगली बार X आया, यहाँ आ गए, पॉप किया, ठीक है. तो पॉप किया, B पॉप कर दिया. उसका किया क्या हमने, इस B का क्या किया. फिर हमने आगे B रीड भी नहीं किया. आप नोट करो, we have not read this. After reading X, we are going to loop. We are popping these items. Then I encountered a blank and I accepted it. So should this be accepted? आप नोटिस कर रहे हो, आपने एक तो X के बाद कुछ रीड ही नहीं किया है, यहाँ पे आप सिंपली पॉप करा रहे हो, ये गलती है. दूसरा, जो ये पॉप करा रहे हो, ये मेमोरी में रखने का क्या फायदा है, इनको याद रखने का तभी फायदा है ना कि हम पीछे क्या पढ़ के आए थे वो आगे वालों से कंपेयर कर सके. वो तो हमने किया नहीं है, वो कंपैरिजन कि वो A ही था या B था, वो तो हमने किया नहीं है. हम सिंपली पॉप करा रहे हैं और एक्सेप्ट करा रहे हैं. अंशिका, अब आप बताओ. मैम मैंने भी मतलब इस टाइप का ही बनाया था, जैसे स्टार्ट रीड, फिर ए पुश कर दिया अगर ए रीड हो रहा है, और फिर बी कर दिया अगर बी रीड होगा, और फिर उसको मतलब फिर से स्टार्ट स्टेट पे डाल दिया. स्क्रीन प्रेजेंट कर दो. मैम एक सेकेंड, मेरा इनकम्प्लीट है, मैं दिखा दूँ क्या, मतलब मुझे पॉप का समझ नहीं आ रहा था. मैम एक सेकेंड, आप दिखा.
ये रहा। Start read. मैम A इसमें को मतलब push किया, एक पुश है। वापस गए, बी किया, उसको भी पुश किया, वापस चले गए। X आया तो पॉप ए किया। हम देखो पॉप करते टाइम डिसाइड नहीं कर सकते कि ए पॉप होगा या बी, वो तो स्टैक में जो मिलेगा वही होगा ना। तो वी कांट हैव पॉप ए एंड पॉप बी स्टेट्स। पॉप विल ऑलवेज बी अ डिसीजन स्टेट। उसमें से क्या निकल आएगा उस पे आप वो करोगे। तो मैम यहाँ पर सिर्फ सिंपल पॉप ही लिखेंगे मतलब? पॉप इन द डिसीजन ब्लॉक। ओके मैम, इसके आगे मुझे दयाशंकर मैं क्लास को ये बता दूं कि जब बच्चे लास्ट में आते हैं ना मेरे पास कि मार्क्स बढ़ा दो, 25 में से 17 ही लगे, 18 कर दो, तो जो यहाँ पे आप जवाब दे रहे हो ना वो 17 के 18 होने में और 24 के 25 होने में ना, यहाँ पे मैटर करेगा जब मैं सवाल पूछूंगी। तो वो जो मैं +1 +2 लिखवा रही हूँ, मैं गारंटी दे रही हूँ कि किसी का भी 25 तो स्कोर होगा नहीं, बट यू स्टिल हैव अ चांस टू गेट दैट 25 if you are responding in the classroom. So because how do I evaluate otherwise? So if you're not answering, आप फिर आना ही नहीं मेरे पास कि मैम मार्क्स बढ़ा दो। मैं यहाँ पे अपॉर्चुनिटी खुद दे रही हूँ कि आप अपने मार्क्स इंप्रूव कर सकते हो। हिमांशु, have you done? Okay. So let me show you the answer and then probably you will understand this better. This is visible, the screen. This is visible? Yes, ma'am. Great. Okay. So अब आप नोट करो, स्टार्ट किया, रीड में भी डिसीजन स्टेट है क्योंकि रीड डिसाइड करेगा रीड क्या हुआ है। अगर ए रीड हुआ है तो कुछ एक्शन लेंगे, और बी रीड हुआ है तो कुछ एक्शन लेंगे, एक्स रीड हुआ है तो कुछ एक्शन लेंगे। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम रीड करके देख रहे हैं। एंड सो व्हेन आई स्टार्ट, मेरा इनपुट टेप है, वहां पे जब मैंने रीड किया, अगर ए रीड किया तो उसको पुश कर दो, बी रीड किया तो उसको पुश कर दो। अंशिका फर्क देखा है? ए जब श्योर हूँ कि ए रीड कर लिया तब मैं पुश ए कह रही हूँ, जब श्योर हूँ कि मैंने बी रीड कर लिया तो मैं पुश बी कह रही हूँ। उससे पहले मैं नहीं बोल रही हूँ कि पुश ए या पुश बी। ठीक है, सो आई हैव रेड समथिंग, if I got an A I pushed it, if I got a B I pushed it, and I kept on doing this till I got an X. As soon as I got an X, so आप वापस से रीड करोगे। चिराग, ये रीड मिसिंग था आपके टाइम पे जब आप बना रहे थे, तो दिस रीड वाज नॉट देयर, बट X के बाद भी तो रीड करना है। यस मैम, मैंने रीड का ऑप्शन ही नहीं था ना, मैं वही तो बोल रहा था आपको, मैंने इसमें अभी पर्टिकुलर एग्जैक्टली नहीं बनाया, वो मैंने पुश में भी नहीं लगाया था रीड। तो उसके बाद आप, अगर आपने रीड करने के बाद ए रीड किया तो आप पॉप में जाओगे। अगर आप ए पॉप करते हो, जो आप पॉप करवा रहे थे, तो आप वहां पे कंपेयर नहीं कर रहे थे। मैंने जो रीड किया है वही पॉप होना चाहिए, then only it is going to match, but we were not able to do this। तो हमने क्या करा, ए रीड किया और पॉप करके देखो स्टैक में क्या पड़ा है। अगर तो सेम लेटर पड़ा है तो आगे बढ़ो, अगर नहीं पड़ा, अगर ए रीड किया और बी पड़ा हुआ था, हमने क्या किया था, ए बी बी बी, तो बी और बी तो मैच कर जाते, बट उसके बाद जो लास्ट वाला बी था और फर्स्ट वाला ए था वो मैच नहीं करता। हमने ए रीड किया है तो ए ही पॉप होना चाहिए। तो अगर कुछ और पॉप हो रहा है तो आप रिजेक्ट करोगे। सेम चीज, अगर आपने बी रीड किया है तो बी ही पॉप होना चाहिए, तभी आप आगे पढ़ोगे। अदरवाइज बी रीड किया और ए या ब्लैंक है तो आप उसको रिजेक्ट कर दो। ये सब तब करते रहोगे जब तक आपको ब्लैंक नहीं मिल रहा। जैसे ब्लैंक मिला फिर से पॉप करोगे। अब स्टैक भी एम्प्टी होना चाहिए, मतलब मेरी इनपुट टेप एम्प्टी हो गई तो मेरी स्टैक भी एम्प्टी होनी चाहिए। उस केस में मैं एक्सेप्ट कर लूंगी।
अगर नहीं कुछ और पड़ा हुआ रह गया, इसका मतलब स्ट्रिंग मेरा पैलिंड्रोम एक्स में नहीं आता। एंड सिमिलरली एक्स भी कभी पुश नहीं होना चाहिए था, अगर दोबारा, या एक्स बीच में और कहीं नहीं आना चाहिए था। तो अगर एक्स भी आया तो भी आप रिजेक्ट कर दो। सो एक बार A BBB को इस पे रन करके देखो जरा। हमने क्या किया था, हमारे पास था A B X B B. Now let me try to trace it. Read A, push A, वापस गए, read B, push B and वापस चले गए। अब रीड करा तो क्या आ गया, X आ गया। सो X। अब क्या होना चाहिए, रीड B। रीड B किया तो आपने पॉप करा, पॉप करा तो आपने अभी तक ये पुश किया हुआ था, पॉप किया तो आपको B मिल गया। तो अगर आपने पॉप किया आपको B मिल गया तो आप वापस रीड करने चले गए। अब आपने रीड किया क्या, इतना आप रीड कर चुके हो, अब आपने फिर से रीड किया क्या, B, तो आप वापस आए, आपने पॉप किया, अब पॉप क्या होगा, A पॉप हो जाएगा। तो A पॉप हुआ, लेकिन आना क्या चाहिए था, B पॉप होना चाहिए था। अगर A पॉप हुआ इसका मतलब आपका स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है, आपने रिजेक्ट कर दिया। क्लियर? एक और बना के देख लेते हैं। Let me give you A B X B A। ठीक है, तो मेरी इनपुट टेब ये है और यहाँ मेरे पास ब्लैंक है। मेरा हेड पॉइंटर यहाँ है, मेरा स्टैक यहाँ है, and when I start, now after start I go to read and I read an A, so I will push an A. Next time, so this has been done. Next time I'm here, I read an A, I again push an A. Done. Now next time my header is here, head pointer is here, I read a B, I push a B. Done. Now I reached here, my X is here. So after reading X, I again go to another read state and I happen to read B. So I read an B. After reading a B, I want to pop. So I popped out a B and this is done. When I popped out a B, I went back to read state again and तब तक मेरा पॉइंटर यहाँ आ गया था। तो मैंने अब A रीड किया तो मैं इस डायरेक्शन में चली गई। जब मैंने A रीड किया, मेरा टॉप पे क्या था, A, and this got here. Next time, this is also dissolved. I go back and read again. Next time, I read an A again. Done. So I've read an A. After reading an A, I will pop. So my top पे B था, A, popped. Done. After doing this, my stack looks something like this. Blank है और मैंने अब रीड में क्या पढ़ा, ब्लैंक पढ़ा, पॉप करवाया, क्या पॉप हुआ, ब्लैंक पॉप हुआ, ब्लैंक पॉप हुआ तो X. Is this clear?
Is this clear? पूछना है तो पूछ लो, ये सारे बनाने होंगे आपको. Should I move ahead or you want to take some time to understand this? मैम Yes. ये जो लास्ट वाला है ना नल पॉप वाला, मैम एक बार रिपीट कर दीजिए. बेटे जो स्टैक होता है ना, कुछ ऐसा समझ लो कि आपका स्टैक में ना बहुत सारे ऐसे नल्स होते हैं. मतलब ये रिप्रेजेंटेशन समझ लो कि ये नल है, एक इनफाइनाइट सा स्टैक है and something of this sort. And when you keep pushing, तो एलिमेंट्स ना नीचे नीचे पुश होते जाते हैं. मतलब just imagine that this stack is some endless stuff and ऐसा कुछ ऐसा कर समझ लो स्टैक को ना. ये पूरा नल्स है, ब्लैंक्स हैं, ठीक है. और जब भी आप स्टैक में कुछ पुश करते हो, मान लो अब आ जाएगा, अगली बार आपने फिर से ए पुश किया तो ये वाला ए इधर मूव कर जाएगा और दूसरा ए यहाँ आ जाएगा. अगली बार आपने बी पुश किया तो ये यहाँ मूव कर जाएगा, ये वाला ए इधर आ जाएगा और यहाँ पे बी आ जाएगा. तो स्टैक को कुछ ऐसे इमेजिन कर लो, ठीक है. अब बी ए तक पहुंच गए. जब ये हो गया था ना, अब हमने ब्लैंक रीड किया. जब आपने ब्लैंक रीड किया तब तक ये सारी चीजें पॉप ऑफ हो चुकी थी. आप यहाँ पहुंच गए थे. जब आपने रीड करा ब्लैंक तो आपने पॉप किया. आप कहाँ थे स्टैक में, या तो आपने ब्लैंक सिंबल भी पॉप कर दिया और दोनों मैच हो गए. मतलब एंड ऑफ स्ट्रिंग, एंड ऑफ स्टैक. सो वी एक्सेप्टेड. So it's just the way you are imagining the stack. ऐसे कुछ नहीं है. Just assume that whenever the stack is empty, then you have this kind of symbol over there. अब वो कैसे भी simulate कर लो, उससे फर्क नहीं पड़ता. ठीक है विभू? यस मैम. Okay, I will show you more examples so that then it will be clearer. So I am assuming कि palindrome x हो गया. अब हमने, आप यहाँ पे नोटिस करो कि हमने palindrome x में एक x रख दिया है बीच का, मिडल ऑफ द स्ट्रिंग को मार्क करने के लिए. मुझे नहीं पता था मिडल ऑफ द स्ट्रिंग क्या है. ये डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट पीडीएफ बनाया तो मिडल ऑफ द स्ट्रिंग मार्क करने के लिए मैंने बीच में एक x रख दिया है. अब उसके बाद लेफ्ट में कितने क्या है, राइट में क्या, उससे फर्क नहीं पड़ता. बट यहाँ से मैं पीडीएफ को हेल्प कर रही हूँ कि जब आप x पे पहुंचोगे तब आपको पॉप करना स्टार्ट करना है. सो दिस x was simply there to help me. That's why I defined this language. अदरवाइज आपके नॉर्मल जो पैलिंड्रोम्स होते हैं उनमें कभी भी ऐसे बीच में एक x नहीं आता. अगर a और b है तो a और b का एक स्ट्रिंग बना होता है. इस केस में हमने एक x मार्कर रखा है so that we know when we have to pop this off. Now you want to create odd palindrome which looks like this. यहाँ नोटिस करो कि x नहीं है. Sorry, this x is not there. You have s followed by reverse of s. Now you have to create this. The hint is that now you can make a non-deterministic PDA. Now please start creating. Same है, मैं ये वाला दिखा देती हूँ आपको, लेकिन अब इसमें x नहीं है. ठीक है. तो अब ये x नहीं है तो अब आपका पीडीए कैसा लगेगा वो बताओ. आपके जो स्ट्रिंग्स में हैं ऑड पैलिंड्रोम में वो कुछ ऐसे हैं. तो अब आप बनाओ, कैसे बनाओगे. And the hint is that now you can bring in non-deterministic.
What will you do to create this odd palindrome? मैम ए और बी के जो कॉम्बिनेशंस होंगे वो एक्स की जगह आ जाएंगे। अच्छा, तो क्या करूं बताओ, यहाँ x की जगह क्या लिख दूं? ए बी मैम ए कॉमा बी। ए कॉमा और भी हाँ बताओ, यहाँ पे क्या लिखूं? मैम ए कॉमा बी। a कॉमा b लिख दूं, उससे हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व? मैम यहाँ पे ए कॉमा बी का मतलब ए और बी ही है ना? राइट, या a आएगा या b आएगा, इससे हो जाएगी प्रॉब्लम सॉल्व? इससे ऑड पैलिंड्रोम एक्सेप्ट हो जाएगा? ओके, नाउ ड्राई रन दिस इन योर माइंड। कोई भी एक स्ट्रिंग उठा लो और देखो एक्सेप्ट हो रही है कि नहीं। मैम इससे तो कोई भी वर्ड एक्सेप्ट जा रहा है। मैम कोई भी वर्ड नहीं हो रहा एक्सेप्ट? मैम कोई भी वर्ड हो जा रहा है। कोई भी वर्ड हो जा रहा है, ओके। सो इफ आई हैव, मतलब मैं इसमें से नहीं लेती, मैं फिर कुछ और वर्ड्स ले लेती हूँ। बताओ, ए बी, ए ट्रिपल बी एक्सेप्ट हो जा रहा है? यस मैम। ओके, चलो ट्राई करते हैं। स्टैक को यहाँ रख देते हैं, ठीक है, और इनपुट टेप को यहाँ रख देते हैं। So start, I read an A. So when I read an A, I pushed it. Okay, I pushed it. So मेरे stack पे ये हो गया. Then I came back. I read a B. When I read a B, I pushed it. हो गया. Then I read a B. When I read a B, I decided that instead of going here, I go here. तो मैं इधर चली गई. अब मैंने रीड किया B. जब मैंने रीड किया B, तो क्या पॉप होना चाहिए? B पॉप होना चाहिए, तो मेरा B पॉप हो गया। ओके, मेरा स्टैक अब टॉप पे A है और यहाँ पे ब्लैंक है। आई रेड अ ब्लैंक एंड आई पॉप्ड, बट आई पॉप्ड एन A, रिजेक्ट। ये तो रिजेक्ट हो गया, तो सही तो हो रहा है? रिजेक्ट नहीं होना चाहिए था, ये तो रिजेक्ट होना ही चाहिए। उसने सारा स्ट्रिंग पुश कर दिया स्टैक में और उसके बाद लास्ट लेटर बी को जब रीड किया और उसके बाद नल रीड कर दिया, तो वो एक्सेप्ट हो रहा है ना? अच्छा, तुम कह रहे हो यहाँ पे करा, फिर मैंने रीड नल किया, रीड ब्लैंक किया। ओके, सो प्रकृति बोल रही है ना? यस मैम। देखो, यहाँ पे जब हम नॉन डिटर्मिनिज्म बना रहे हैं ना, तो ऑब्वियसली देयर विल बी वेज वेयर, एक मिनट, ये नल ब्लैंक पे पॉप, एक बार मेरे को देखने दो। A ट्रिपल B, okay, and then I read a blank. Okay, you are saying when I read a blank here, तो यहाँ पे पॉप किया, तो बेटे आप पॉप करोगे तो आपका देखो, आपने क्या किया, आपने सारा स्ट्रिंग स्टैक पे पुश किया था, ऐसा कुछ किया था ना? Yes, आपने ये ma'am. सारा स्ट्रिंग स्टैक पे किया था, तो Yes. इसका मतलब आपने कुछ ऐसा किया होगा, बी 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 ए। अब आपने यहाँ पे ब्लैंक रीड किया, ठीक है,
जब आपने ब्लैंक रीड किया और आपने पॉप किया तो ब्लैंक पॉप होना चाहिए था, पर स्टैक में तो बी पॉप हो रहा है ना, ये तो रिजेक्ट हो गया अच्छा है ना। ब्लैंक थोड़ी हो रहा है, ब्लैंक तो तब पॉप होगा जब आप स्टैक में यहाँ पे पहुंचोगे। अभी तो टॉप पे बी है ना, यस मैम। तब भी रिजेक्ट हो रहा है। बट ये बात है कि अब मैंने इस ए के बाद जब बी आया तो मेरे पास ऑप्शन था कि मैं यहाँ चली जाऊं या मैं यहाँ चली जाऊं, तो मुझे वो डिसीजन कहीं मशीन खुद नहीं ले सकती। दैट्स व्हाई दिस इज नॉन डिटर्मिनिज्म। बट if we can make that decision at the right time, right in the middle, then in that scenario we will be able to accept words that are in this language. तो हमें बस इस चीज का ध्यान रखना है that we have to make a decision to exit at the right time. मतलब instead of pushing that symbol, we exit here. So as we said, even palindrome तो मैंने बनाया नहीं, यहाँ पे ऑड बनाया है। तो अगर अब कोई वर्ड लेते हैं, वैसे ये सही हो जाएगा ना, क्योंकि पिछला अभी वाला भी नॉन बिल्कुल ऐसा था। हाँ ये बिल्कुल ठीक है। उस केस में क्या हो रहा था बेटे, उस केस में एक्स था तो वो क्लियर मार्कर था। अब इस केस में हमारे पास ए या बी ही है, और ये ए और बी यहाँ लिखने से नॉन डिटर्मिनिस्टिक है कि रीड के पास ए के लिए ये ऑप्शन भी और ये भी ऑप्शन है, सिमिलरली रीड के पास बी के लिए ये ऑप्शन है और ये भी ऑप्शन है। बट स्टिल हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं जब आपके पास है ए बी 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 ए। सो दिस इज माय ऑड पैलिंड्रोम, ठीक है। When I read an A, I go here, I push it onto the stack. Then I read a B, I go here and push it onto the stack. Now I read a B. So I have a choice of going here or I can go here. But अभी मैं डिसीजन ले रही हूँ कि मैं इधर जा रही हूँ। जैसे मैंने ये B रीड किया, अब मैंने रीड किया क्या, B। अब मैंने रीड B किया और मैंने स्टैक से पॉप किया तो मुझे B ही मिलेगा क्योंकि मैंने लास्ट एलिमेंट B पुश किया हुआ था। उसके बाद मैंने A रीड किया और उसको पॉप किया, और जब उसको पॉप किया तो भी मुझे A मिल गया। मैं वापस रीड सेट में आ गई। अब ब्लैंक मिला, स्टैक भी एम्प्टी हो गया था, तो मैं एक्सेप्ट कर जाऊंगी। पर यहाँ पे जब मैंने B के लिए एग्जिट लिया था, वो एग्जिट ना लेके अगर मैं इस रास्ते पे आ जाती तो भी मेरा स्ट्रिंग एक्सेप्ट नहीं होता। तो नॉन डिटर्मिनिज्म में एक बात हमने ध्यान रखनी है कि हम सही टाइम पे एग्जिट कर लें, सही टाइम पे हम सही पाथ चूज कर लें। इट्स सिंपली लाइक when Google Maps is telling you that there are two ways and ETA में दोनों में 2 मिनट का फर्क है, and you choose a route which you feel कि आप ज्यादा कंफर्टेबल हो, and at some point of टाइम उसका ETA बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बिकॉज आपने डिसीजन गलत ले लिया था वो चूज करने का। तो जब भी आप वो वाला राउट ले रहे हो तो आप सही टाइम पे डिसीजन लेके सही पाथ लोगे तो आप पहुंच जाओगे, अदरवाइज आप गलती कर सकते हो। बट फिर भी नॉन डिटर्मिनिज्म ने आपको एक पावर दे दी है कि आप यहाँ पे ए और बी लिख करके आप पैलिंड्रोम्स को मैच करवा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन अब बात समझ आई है थोड़ी सी। नाउ आई वांट यू टू डू दिस फॉर ऑड इवन पैलिंड्रोम। हमने अभी ऑड के लिए किया है, अब इवन के लिए आप बनाओ। अब मैं पूछूंगी, अब इसको आप बनाओ। हाउ विल यू डू इट? You have to create for even palindrome. मैम मिडिल ऑफ द स्ट्रिंग में अगर नल डाल दिया तो मतलब वो एक्स करो ट्राई करो मैम। जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें आप करो, बना के देखो। चला ए बी, मैं समझ गई। आप वहाँ पे ब्लैंक डालना चाह रहे हो, आप यहाँ ब्लैंक डालना चाह रहे हो, आप कह रहे हो यहाँ पे मैं ब्लैंक डाल देती हूँ। आप इसको चला के देखो, किसी स्ट्रिंग पे ना ड्राई रन करके देखो, ऐसा कुछ कह रहे हो ना।
ये ए नहीं आएगा तो क्या चलेगा, वो आप डाल के देखो, चलेगा? ब्लैंक वाला तो सबके हाँ लिए हो जी। जाएगा ना, सिंपल पैलिंड्रोम हो जाएगा वो, ऑर्डर इवन सब ले लेगा ना ब्लैंक डालने पे। नहीं, वो पैलिंड्रोम होगा ही, बीच में ब्लैंक आ गया तो पैलिंड्रोम कैसे बनेगा यार, बीच में ब्लैंक पढ़ नहीं पाएंगे ना। बट स्टिल यू ट्राई इट, ऑल ऑफ यू गिव इट अ शॉट. Then I will answer. Think about it. मैम ये जो ऑड वाला था, मैम किया ट्राई? मैम अगर उसमें वो जो सेंटर वाला सेंटर वाले स्ट्रिंग ले रहे थे वो हटा दे तो, क्योंकि उसी की वजह से ऑड बन रही थी, अगर वो हट जाएगी तो फिर इवन देने लगी. Okay. You are going in the right direction. You are going in the right direction. सही सोच रहे हो, अब इसको बनाओ. Abhinav, did you do? मैम 1 मिनट बस लिख रहा हूँ.
Should I give you the answer? Ma'am, wait for few seconds, ma'am. ज्ञानेश कुछ कह रहे हो, थोड़ा सा लाउडली बोलो. Ma'am, wait for few seconds, ma'am. I'm trying. Okay. मैं इसमें ऐसे ब्लैंक से ब्लैंक थोड़ा जा सकता है, क्योंकि जैसे पहले रीड के बाद जब पॉप पे जाना होगा तो उसके लिए एक और रीड चाहिए, लेकिन बीच में ऐसे कुछ जाना भी नहीं चाहिए. ये देखो जरा, यहाँ तक ठीक है. जो आपने अभी किसी ने सजेस्ट किया था, अभिनव ने किया था शायद, x की जगह a और b रख दो. जब a रखा, अब a रीड किया है, तो अगर तो a पॉप हुआ तो वापस रीड करो और आगे बढ़ जाओ. अगर a पॉप नहीं हुआ है तो रिजेक्ट कर दोगे. सेम चीज b के लिए है कि अगर b रीड किया, b ही पॉप हुआ तो आगे रीड करो, अदरवाइज रिजेक्ट कर दो. अब अगर वापस से रीड कर रहे हो तो सेम चीज रिपीट होगी कि यू वांट टू रीड यू वांट टू पॉप एग्जैक्टली व्हाट यू हैव रेड. अगर ए रीड कर रहे हो तो ए पॉप करवाओगे, बी रीड कर रहे हो तो बी पॉप करवाओगे. उसके अलावा रिजेक्शन है, बाकी चीजों में रिजेक्शन है. ब्लैंक रीड कर रहे हो तो ब्लैंक ही पॉप होना चाहिए, कुछ और रीड करोगे तो रिजेक्ट है. अब इसको देख लो एक बार. अगर मैं बोलूं मुझे चाहिए ए ए A, sorry, let me do this. Okay, we are having an even parent problem. So I read an A, I want to push it. Then I read an A again, and I want to push it. Then I read a B, and I push it. Now I have reached the middle, so now I decide to exit.
So this is something that machine cannot determine. That is non-determinism. So it will need some help in deciding when to exit. Let's say I'm helping the machine out. So now I read a B. Now if I read a B, I want to pop something, but that pop should have been B itself because अब मैं second half में हूँ. तो जो read कर रही हूँ वही pop होना चाहिए. तो क्योंकि मैंने B push किया था, तो B पे गई. Then उसके बाद I read again and I read an A इसके बाद यहाँ पे. So I read an A and then I want to pop again. So when I pop again, I should be able to pop an A. So I was able to pop an A. Then I read again. And then I read again an A, which again I popped an A. Now I read a B. Oh, sorry. And I read a blank, which I have missed clearly. So let me just draw a diagram here. I missed clearly. So if I read a blank and I pop a blank, then I will accept. Okay. So I will show you how you have to represent this. So this is this ABBA I have taken. When you are writing for the exam, this is how you are going to show this. That at the start, your stack is empty, your tape has this. And when you are reading, you will highlight. जैसे मैंने यहाँ पे black, dark black किया हुआ है, आप एग्जाम के टाइम पे इसको सिंपली अंडरलाइन कर सकते हो. ठीक है. So and when I am done reading it, you will just simply cross this thing off. तो जब आप एक्सप्लेन कर रहे हो कॉपी पे, तो आपको कुछ इसी तरीके से करना है. So what we are doing is we are reading ABBA. When I read an A, I push an A. Then I read a B, I push that B. Now I make a decision to move in the other direction and I want to pop. So I pop this B. Now this is gone, if you can see. Then I want to read again and I read an A and I pop again and I read and I pop an A. Done. Then I read a blank and I pop off a blank. So accept. So this you will have to show. This is on your input tape. I think I missed a blank here. So I would like to add an edge of blank here. I will add it later on my site also. So this is how it works. Is even palindrome clear? So you have आप palindrome जैसे A and B and accept हो रही थी without non-determinism. Palindrome X हो रही थी without non-determinism, but odd palindrome और even palindrome accept नहीं हो पा रहे थे. तो non-determinism वजह से आपने कुछ ऐसी लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करवा पाए जो डिटर्मिनिस्टिक पीडीए नहीं कर पा रहा था. तो आपने बाय इंट्रोड्यूसिंग नॉन डिटर्मिनिज्म, बिकॉज यहाँ पे भी ए एग्जिट है, यहाँ पे बी एग्जिट है, आपने इवन पैलिंड्रोम और ऑड पैलिंड्रोम लैंग्वेजेस एक्सेप्ट करवा पाए हो. दैट इज व्हाई a non-deterministic PDA is more powerful than a deterministic PDA. So if I want to write it in ascending order, so FA have the least power because they can accept only regular languages. Then ulta ho gaya. FA can accept only regular languages. Deterministic PDA can accept regular as well as some non-context free languages, and non-deterministic PDA can accept regular, some non-regular languages and some more non-regular languages which could not have been accepted by DPDA. तो यहाँ पे ये रेगुलर है, यहाँ पे वो A and B and टाइप्स हैं जिनको डिटर्मिनिज्म की जरूरत नहीं है, प्रोबेबली पैलिंड्रोम X भी है, एंड यहाँ पे ऑड पैलिंड्रोम भी है एंड इवन पैलिंड्रोम भी है. So this non-deterministic PDA can accept all these languages. Deterministic PDA can only accept this, and FA can accept only this. Okay, is this clear? Obviously, you will need
to practice a lot of questions. एग्जाम में पीडीए बनाना आता है तो आपको ये सब सोचना पड़ेगा. Not again, as I have been telling you throughout, this paper requires only practice. If you practice, it is very simple. So if I want to, and this is how you are going to represent when you are going to write the answer. Please be very clear about it. आंसर लिखने के लिए ऐसे ही बताना है एग्जाम में भी या मुझे असाइनमेंट दोगे तब भी. अब पुश डाउन ऑटोमेटा की डेफिनेशन है. एग्जाम में डेफिनेशन एज इट इज पूछ ली जाती है तो एग्जैक्टली ऐसा लिखना है. इट इज अ कलेक्शन ऑफ 8 थिंग्स. सबसे पहले सिग्मा ऑफ इनपुट लेटर, एक इनपुट टेप है, alphabet gamma of stack, the stack itself. Then you have a start state. उसके बाद सिर्फ आउटगोइंग एजेस होती हैं, इनकमिंग नहीं होती. हॉल्ट स्टेट दो तरीके की हैं. एक तो एक्सेप्ट स्टेट हो सकती है, यहाँ पे हॉल्ट करोगे, और एक रिजेक्ट स्टेट होती है. रिजेक्ट में पहुंचे तो कुछ रीड पॉप कोई कहानी नहीं करोगे. रिजेक्ट मतलब रिजेक्ट, उसके बाद वो आप आगे बढ़ोगे. एंड देन यू हैव योर पुश स्टेट. पुश स्टेट में आप लेटर्स पुश करते हो स्टैक पे. दिस इज नॉन ब्रांचिंग. एंड यू हैव टू ब्रांचिंग स्टेट्स व्हिच आर रीड एंड पॉप. जैसे जैसे लेटर्स आते रहते हैं उसके बेसिस पे आप ब्रांचिंग करते रहते हैं. सो रीड हैज आउटगोइंग एजेस फ्रॉम all or some letters of sigma, and you can have an outgoing edge for blank also. Same for pop. Letters of gamma stack है ना, क्योंकि ये वाला जो है रीड इनपुट टेप से रीड कर रहा है, इसलिए सिग्मा के कैरेक्टर्स. और पॉप जो है स्टैक से पॉप कर रहा है, इसलिए स्टैक कैरेक्टर्स. So you can have all or some of these characters and the blank symbol. So this is the definition of PDA. एग्जाम में आएगा तो exactly यही कहानी करनी है. आप देख लेना, फाइनाइट ऑटोमेटा में भी आपने 3 लाइन डेफिनेशन ऐसे दी थी, टीजी की भी ऐसे ही दी थी. फिर आपने अब इसके बाद अब डिटर्मिनिस्टिक पुश डाउन ऑटोमेटा की भी आप डेफिनेशन दे रहे हो, तो एग्जैक्टली ऐसे ही दोगे. यू हैव टू रिमेंबर दैट इट इज एन 8 tuple. So the PDA will look like a connected graph, directed graph. Directions हैं, graph जैसा, nodes हैं, जो states हैं वो nodes हैं. You will have an input string that ends in except. So उसको आप accepted string बोलते हो. अब input string किसी भी रास्ते से जा सकता है, लेकिन एक पाथ तो ऐसा होना चाहिए जो उसे accept की तरफ ले जाए. तो यहाँ पे इस डेफिनेशन में इस लाइन के थ्रू आप डिटर्मिनिज्म और नॉन डिटर्मिनिज्म दोनों कवर कर रहे हो. If there is exactly one path that leads to accept, then you have a deterministic PDA. If you have more than one path or input string can take more than one path, then you have a non-deterministic PDA. So set of all input string accepted by PDA is called the language accepted by the PDA. ये सेम चीज हमने FA की डेफिनेशन के टाइम भी करी थी. और the language recognized by the PDA. Now you have a very simple question. अभी तक हमने ग्रामर्स डिफरेंट टाइप की करी है. अब कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर बनाते हैं जिसमें नॉन टर्मिनल्स और टर्मिनल थे. ठीक है, अब इसके लिए आपको पुश डाउन ऑटोमेटा बनाना है. आपकी जो प्रोडक्शंस हैं दे आर S goes to S plus S, S goes to S into S, and S goes to 4. इसके लिए पीडीए बनाओ. सोचो थोड़ा सा. सो इस केस में आपके टर्मिनल सिर्फ एस है. देयर इज ओनली वन टर्मिनल एंड देयर आर देयर इज ओनली वन नॉन टर्मिनल एस एंड देयर आर 3 terminals plus multiply and 4 terminal because they cannot be replaced. Now you have to create a push down automata for this. Please start. Now I will ask you to show it. And the sooner you finish it, the sooner the class will get over. This is the last question that we are doing today.
Anyone who's trying to do? If you're trying, then I will wait. Otherwise, I'll tell you the answer and wind up. Are you trying? See, यार आप क्लास की तरफ से बोल सकते हो. If you are trying, then I will wait. Otherwise, I'll finish this. मैं क्या बोलूं? बता दूं आंसर? So nobody is trying. Okay. Fine. So just anyone who is saying something. Okay. Fine. Then let's finish this. So you are going to start. Then you are going to push the non-terminal. So your productions will look like this. अगर इसमें आप सोचते हैं ना तो आप और CFGs लिख सकते थे. But ठीक है. Anyways, no problem. So these are the three productions you have. So it's a kind of derivation. अगर मुझे 4 के additions या multiplications करने हैं तो मैं kind of derivation tree बना सकती हूँ. कुछ ऐसा बना सकती हूँ. S goes to S plus S. Now next time around I can just simply replace it with the 4. I can simply replace this with a 4, or probably I can replace it with some other production. So I need to remember that. So कुछ ऐसा. और मान लो इसको मैं रिप्लेस करना चाहती हूँ. आप कुछ भी कर सकते हो. And I want to replace this with 4. Replace this with 4. Let's replace this with S plus S. And let's replace this with 4. And ये आपको ये वाली जो हम कहानी कर रहे हैं ना, ये कहानी अब आपको सिस्टम प्रोग्रामिंग में काम आना शुरू हो जाएगी. ये ध्यान से सुन लेना. So what will be the string? This will be going from left side. 4 into 4 plus ये ध्यान से सुन लेना. मैं इसको रिपीट नहीं करूंगी. Then you have this string, and so this is 4 plus 4 and plus 4. Okay, so this is the final string that you have got. You could have any number of expansions in this. So how to form a PDF for this? So what you are going to do is you will push this S symbol. Now you have an option of replacing it with the non-terminals themselves. So, or you can expand it as many number of times you want. Suppose you decide to expand it. Because you have pushed S, you might want to expand it further. So you can do an S plus S for this production, or S into S for this production. Once you are done, so basically what you have done, push S, push plus and push S, or push S, push into and push S. Once you are done, you will again want to pop. If you get an S, that means you can still, expand those productions like this. And or you might want to replace it with a terminal. If you pop an operator plus or multiply, then you are going to basically you are simply going to just read that symbol and then go back to replace the remaining S things that you have popped off. So, and if you read a blank, it simply means the end of the string. And you read if you pop a blank, that means you are done popping off. And this means
that you have simply read the end of the string and you accept. Is this clear? मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको क्लियर है हम क्लास खत्म कर सकते हैं, क्लियर नहीं है तो पूछ लो, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगी, मेरी तरफ से ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। मैम फिर से बता दीजिए। Okay, so there are three productions. S goes to S plus S, S goes to S into S, and S goes to 4. अगर आप नोटिस करो तो आप जो नॉन टर्मिनल है आप उसको कितनी बार भी रिप्लेस कर सकते हो इन प्रोडक्शन से, और फाइनली इस टर्मिनल से आप रिप्लेस करके टर्मिनेट कर सकते हो। अब अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग आता है तो वो स्ट्रिंग फॉर्म कैसे होगा? वो स्ट्रिंग फॉर्म करने के लिए सबसे पहले आपको उसकी डेरिवेशन बनानी पड़ेगी। तो डेरिवेशन अगर मैं बोलूं, मेरे पास स्ट्रिंग है, सिंपल सा स्ट्रिंग लेते हैं 4 + 4, ठीक है, इतना सा स्ट्रिंग है मेरे पास, तो वो कैसे बना होगा? S goes to, ये उसकी डेरिवेशन, S goes to S plus S goes to 4 plus S goes to 4 plus 4. So आपके इनपुट टेप पे 4 plus 4 आया है। So how will you process this string? मतलब ये अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है, how are you going to process it? So you know that these are the derivations. Now how to simulate it using the push down automata? So you start, then you push the first derivation, then you push it. So just let me rub the other things. So when you start and when you encounter this 4, you have to somehow start somewhere. So I want to say ki, okay, let me form this word using these productions. So I am going to start and push an S. So I pushed an S on the stack. When you pushed an S on the stack, and then you are going to pop it to form more derivations, more derivations or a longer tree. When you popped it, you have a choice that you want to simply replace it by, if you popped an S, just replace it by 4, then read a plus, and then read an S and do something like this. So हमने जब S pop किया, जब मैंने S pop किया तो S pop करके मेरे पास ऑप्शन क्या थी, ये वाले portion को push करने की. So see, this is again non-deterministic. That is why it is able to take 3 possibilities for S here. कितनी प्रोडक्शन है? 3. तो पॉसिबिलिटी कितनी है? 3. अब जैसे ही आपने फर्स्ट पुश किया S किया, because you always start with the start symbol, you had pushed it. When you popped it, you got an S. When you got an S, you could have gone to this 4 plus 4 direction, or you could have replaced it using any of these things. Let me replace this S with S plus S. तो आपके स्टैक में क्या आ गया? बिकॉज आप पुश कर रहे हो, तो आपके स्टैक में क्या आ गया? S plus S. So stack is going to help you remember which production you used to derive this expression. So you did this, you went back and then you popped the stack. When you popped the stack, you got an S. So when I popped the stack, I got an S and I went this direction. See, non-determinism में मैं किसी भी direction में जा सकती थी, मैं उसको further expand कर सकती थी, मैं इस तरीके से expand कर सकती थी, but मैं यहाँ से कर. So I went to this further direction and I popped an S. तो मेरे stack में एक तो ये बचा है अभी, plus and S. और जब मैंने stack में S करा, तो अब मैं इनपुट टेप से क्या रीड करूंगी? अब मैं इनपुट टेप पे, मेरे इनपुट टेप पे क्या आया है? इनपुट टेप पे ये था. So now I have an option of reading a 4. So I replaced this with a 4. Now next time I went back and I popped again. So when I popped again, I got a plus.
So if I got a plus, I read. Now I should get a plus because I popped up a plus and I have had this production. तब अब मैं final string वो बनाना है जो input string tape पे है. किससे बनाना है? इन प्रोडक्शन से बनाना है. और ये प्रोडक्शन मैंने कहाँ स्टोर करके रखी है? स्टैक पे. तो जब मैंने प्लस पॉप किया तो मेरे को इनपुट टेप पे भी रीड प्लस ही करना पड़ेगा. तो जब आपने इनपुट टेप पे प्लस रीड किया तो दिस इज a kind of match. So you again go back to pop and now your stack has this S. So again you go here and then you pop. Again आपके पास ये सारी options हैं, but क्योंकि हमारा string 4 पे finish हो रहा है, तो I am making again a choice because I popped an S. I read a 4. So I have read this. I now read a 4 and I get this 4 plus 4. When I get this 4 plus 4, now I pop an empty stack, which is मेरे पास यहाँ blank बच गया. So I popped an empty stack and I read. And यहाँ पे भी मेरे पास blank बचा हुआ था. So I read and I accept. So we are saying whether this 4 plus 4 can be generated using this grammar. तो मैंने इसके लिए एक PDA बनाया और 4 plus 4 को कैसे जनरेट करना है वो वाली प्रोडक्शंस मैंने स्टैक पे स्टोर करी. एंड जब मैंने स्टैक पे स्टोर करी उसके बाद उन्हीं प्रोडक्शंस के अकॉर्डिंगली मैं रीड करती गई और टर्मिनल से रिप्लेस करती गई. इफ I reach at the end of the string and I have an empty stack, then I will go to an accept state. And you can clearly see this is non-deterministic. Now, to understand this better, it's always good to try more examples. I will finish the class here. This is on my course page and this is in your book also. So if you want, let's try. Suppose let's assume your input string is 4 plus 4 into 4. Note कर लो. जिसको try करना है, जिसको नहीं करना कोई problem नहीं है. And plus 4 into 4. Okay. So brackets हमारी सहूलियत के लिए इस ग्रामर में आप नोट करो. तो ब्रैकेट्स नहीं है. मैंने सिर्फ इनपुट लिया है. अगर ये इनपुट आएगा तो स्ट्रिंग रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस लैंग्वेज. सो माय एक्सप्रेशन इज बेसिकली दिस 4 plus 4 into 4 plus 4 into 4, something like this. Now you have to check अगर इनपुट टेप पे ये आया है तो आपको ये चेक करना है कि क्या ये एक वैलिड एक्सप्रेशन है इस लैंग्वेज के लिए. तो उसके लिए आपको ये सारी ऑप्शंस दी हुई हैं. ये इसलिए करना जरूरी है क्योंकि जब अब आप कंपाइलर लिखोगे और उसमें आप प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स तरीके से आप इवैल्यूएशंस करोगे स्टैक यूज करके. आई थिंक आपने डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ा होगा. पॉलिश नोटेशन होती है, प्रीफिक्स नोटेशन होती है. तो हमारे पास इनपुट स्ट्रिंग आता है तो उसकी पार्सिंग करनी होती है. मैचिंग ऑल द प्लसेस, मर्जिंग ऑल द मल्टीप्लिकेशन साइन और मैचिंग ऑल द ब्रैकेट्स. तो ये जब आप CFG लिखते हो तो स्ट्रिंग आता है. उस CFG को आप पुश डाउन ऑटोमेटा या मशीन की तरह सिमुलेट करते हो और चेक करते हो कि क्या ये स्ट्रिंग लैंग्वेज का पार्ट है या नहीं है. अगर एंड में एक्सेप्ट में पहुंच जाएगा तो कंपाइलर विल नॉट थ्रो एन एरर, अदरवाइज इट विल थ्रो एन एरर. तो वो ऐसे कंपाइलर ऐसे कर रहा होता है. ठीक है. तो आपके पास लैंग्वेज है, आपके पास इनपुट स्ट्रिंग है, आपके पास पुश डाउन ऑटोमेटा है. आपको अब सिमुलेट करके देखना है कि क्या ये वैलिड एक्सप्रेशन है और है तो कैसे पुश या पॉप मूव करेंगे जो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाए. ओके. Please note down this question and just this question. This is available in your book on my website also, so you can see that. Okay, I am done. If you have questions, you can stay. Otherwise, you can exit.